السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق سورۃ الکافرون ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ النصر پڑھی تھی، تو آج یہ بھی سورہ بہت اہم اور ضروری سورہ ہے۔ تو اس سورہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو ایسی بہت سی چیزیں پتہ چل جائیں گی جو آپ پہلے شاید نہیں معلوم ہوں گی۔ امید ہے کہ اس کو بھی آپ دھیان اور توجہ سے سنیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ بہت اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے گی۔ چلیں ناظرین، اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکافرون۔ اس میں ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کی تفاسیر بھی پڑھیں گے، اور اس میں مزید ایسی چیزیں پڑھیں گے جو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی۔ تو آپ مکمل ویڈیو دیکھا کریں۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، پھر آپ ہم سے کویشچن کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیز سمجھ نہیں، آپ نے یہ نہیں بتایا۔ آپ پوری مکمل ویڈیو دیکھیں، اس میں ہم سب کچھ انشاءاللہ العزیز بتائیں گے۔ اور اس یہ سورہ الکافرون مکی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورہ کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول سے مراد یہ ہے کہ کیا واقعہ ہوا تو یہ سورہ نازل ہوئی۔ کہ ابن اسحاق کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ، ان میں سے ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے آپ بھی خوش اور ہم بھی خوش، کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ یا دوسری جگہ بھی ابن عباس سے روایت ہے، کفار مکہ نے پہلے تو آپس میں صلح کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں، آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، اور جس عورت سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کر دیں، آپ صرف اتنا کریں، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں، یعنی آپ اللہ کی عبادت کر لیں گے، اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے معبودوں کو ہاتھ بھی لگا دیں، ہم آپ کی تصدیق کر لیں کہ آپ ٹھیک ہے، آپ نے ہماری بات مان لی۔ تو اس پر جبرائیل امین سورۃ الکافرون لے کے نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالی کی عبادت کا حکم ہے۔ تو اس میں دیکھو، ایک تو بات یہ ہے کہ کافروں نے صلح کی پیشکش کی، تو اس میں آپ کو ایک ضروری بات یہ بتا دوں کہ کفار سے معاہدہ اور صلح کی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض صورتیں ناجائز ہیں۔ تو سورہ کافرون میں کفار کی طرف سے پیش کیوں ہی مصالحت کی چند صورتوں کو بالکل رد کر کے اعلان برات کیا گیا، مگر خود قرآن کریم میں ارشاد بھی موجود ہے، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، یعنی کفار اگر صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جائیں، یعنی معاہدہ صلح کر لیجئے۔ مدینہ طیبہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہود مدینہ سے آپ کا معاہدہ صلح مشہور و معروف ہے، اس لیے بعض مفسرین نے سورۃ کافرون کو منسوخ کہہ دیا ہے۔ منسوخ کہنے کی بڑی وجہ یہ والی آیت ہے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یہ والی آیت ہے۔ تو لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ کی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا ہے یہ سورت منسوخ ہے، کیونکہ بظاہر یہ احکام جہاد کے منافی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہاں لَكُمْ دِينُكُمْ کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی گئی ہے، بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو آیت لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ اس لیے راجع صحیح جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سورہ منسوخ نہیں۔ جس قسم کی مصالحت سورہ کافرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اس وقت حرام تھی آج بھی حرام ہے، اور جس صورت کی اجازت آیت مذکورہ میں ہے، یعنی کہ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا،
रसूल में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआहिदा यहूद से अमलन जाहिर हुई है। वो जैसे उस वक्त जायज थी आज भी जायज है। बात सिर्फ माहौल और मौका को समझने और शरायत सुलह को देखने की है, जिसका फैसला खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमा दिया है। इसमें कुफ्फार से मुआहिदे को जायज करार देने के साथ एक इस्तिस्ना का इरशाद है, वो ये है कि इल्ला सुलहन अहल्ला हरामन औ हर्रम हलाला। इल्ला सुलहन यानी कि क्या मैंने मतलब यानी हर सुलह जायज है बजुज उस सुलह के जिसकी रूह से अल्लाह की हराम की हुई किसी चीज को हलाल या हलाल की हुई किसी चीज को हराम करार दिया गया हो। अब गौर कीजिए, कुफार मक्का ने सुलह की जो सूरतें पेश की थी उन सब में कम अज कम कुफ्र इस्लाम के हुदूद में इल्तिबास यकीनी है। ये बात सूरतों में तो उसूल इस्लाम के खिलाफ शिर्क का इर्तिकाब लाजिम आता है। ऐसी सुलह से सूरह काफिरून ने ऐलान बरात कर दिया। दूसरी जगह जिस सुलह को जायज करार दिया वो अल्लाह के नबी ने वो यहूदियों से वैसी सुलह करके दिखाई। उसकी अमली सूरत मालूम है, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें उसूल इस्लाम के खिलाफ किया गया हो या कुफर इस्लाम के हुदूद आपस में मिलती हुई हो। इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब रवादारी हुस्न सलूक सुलह सालिमत का दाई नहीं, मगर सुलह अपने इंसानी हुकूक में होती है। खुदा के कानून और सूरे दीन में किसी सुलह मसाहलत की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो नाज़रीन इस सूरा का शान नज़ूल मैंने आपके सामने थोड़ा सा मुख्तसर बयान कर दिया है। बाकी इस सूरा के फायदे भी बहुत ही ज्यादा हैं। फायदे में थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ कि हजरत जबीर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो जब सफर में जाओ तो वहां तुम अपने सब साथियों से ज्यादा खुशहाल बामुराद रहो, तुम्हारा सामान सबसे ज्यादा हो जाए। इन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बेशक मैं ऐसा चाहता हूँ। आपने फरमाया, आखिर कुरान की 5 सूरतें सूरत काफिरून, सूरत नस्र, सूरत इखलास और फलक और सूरत नास पढ़ा करो। ये हर सूरत को बिस्मिल्लाह से शुरू करो और बिस्मिल्लाह ही पर खत्म करो। हज़रत जबीर फरमाते हैं, उस पहले मेरा हाल ये होता था, सफर में अपने दूसरे साथियों के साथ जाता तो मैं सबसे ज्यादा खस्ता हाल, मेरे पास थोड़ा मार होता था। जब से अल्लाह के नबी ने मुझे इसी अमल बताया उसके बाद मैंने इस पर अमल किया, मैं सबसे बेहतर हाल में रहने लगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम को बिच्छू ने काट लिया। आपने पानी और नमक मंगाया और ये पानी काटने की जगह लगाते जाते कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ते जाते। ऐसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, फजर की सुन्नतों में पढ़ने के लिए 2 सूरतें बेहतर हैं, सूरह काफिरून और सूरह इखलास। तो ये थे इसके चंद थोड़े से मैंने आपको इसका शान नज़ूल भी बता दिया और थोड़े से फजाइल भी बता दिए। चलिए नाज़रीन, अब हम इस सूरा शुरू करते हैं। ये फॉलो कीजिए और मेरे साथ आप भी पढ़िए और ये अरबी इबारत पढ़ा करें, इससे आपके तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छे हो जाएंगे और ये सूरत भी आपको अच्छी याद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल, क्या मतलब आप कह दीजिए। इसके वजन पर कोई भी लफ्ज़ आए उसमें आपका तर्जमा होगा। अगर लफ्ज़ कुल का हमेशा यही तर्जमा होगा, आप कह दीजिए या अय्युहल काफिरून। किसी लफ्ज़ के शुरू में या आ जाए, ये इसम की अलामत हो, ये मुनादा के लिए आती है। या ए पारने के लिए, ए काफिरो मुखातब करने के लिए, ए काफिरो काफिरू ये काफिर की जमा है। एक काफिर को काफिर और ज्यादा को काफिरून कहते हैं। ये अरबी का उसूल है, अगर किसी चीज की आपने जमा बनानी उसके आगे वाव और नून लगा दो, जमा बन जाएगी। ए काफिरो ला अअबुदु मैं नहीं इबादत करता। ला का मतलब नहीं, अअबुदु मुतकल्लिम का सीगा है, इसमें इसका तर्जुमा मैं से शुरू करें। इसकी निशानी ये है, इसके शुरू में हमजा होगा, उसके बाद सुकून वाला लफ्ज होगा, उसके आखिरी लफ्ज में पेश होगी। अअबुदु मैं नहीं इबादत करता, जैसे अफ़अलु अकरमु अनसुर, ऐसे तर्जुमा। मा ताबुदुन मा जिसकी, ताबुदून तुम इबादत करते हो, वला और नहीं, अंतुम
तुम इबादत करने वाले, तुम, अंतुम का मतलब है तुम ये अंतुम जमीर है, जहां भी अंतुम आज इसका मतलब होता है तुम। आबिदुन इसमें फाइल का सीगा है, आबिदुन एक इबादत करने वाला, आबिदून और वाव नून ये जमा की वजह से। मैंने आपको बताया जमा बनाने का सबसे आसान तरीका यह है, उस लफ्ज के आखिर में वाव और नून लगा दो। आबिदूना इबादत करने वाले, माँ जिसकी, इसका तर्जुमा होगा जिसकी, उसकी, ये इसमें मौसूल भी होता है, माँ मस्दर भी होता है। इंशाअल्लाह मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, आप यहाँ फिलहाल यही तर्जुमे रखें। जिसकी आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ठीक है। वाला और नहीं, अना मैं, अना ये जमीर है, इसका तर्जुमा हमेशा यही होगा मैं। आबिदुन इबादत करने वाला, माँ उसकी जिसकी, अबद तुम इबादत करते हो, ये तुम भी जमीर है, जहां भी लफ्ज में आ जाओ तर्जुमा जमीरों से शुरू करते हैं। तुम अबद तुम इबादत करते हो। वला और नहीं, अंतुम तुम इबादत करने वाले, नहीं और तुम इबादत करने वाले, आबिदूना इबादत करने वाले, माँ जिसकी मैं इबादत करता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वलिया और मेरे लिए दीन मेरा दीन। अच्छा ये इसमें आपको बता दूं कि ये अल्फाज दो बार क्यों तकरार के साथ आ रहे हैं। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, ये बिल्कुल ऐसे ही आगे भी यही आ रहा है, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम। अगर अरबी का उसूल है कि अगर एक लफ्ज से एक जुमले से बात समझ आएगी तो उसका तकरार लाजमी नहीं होता। तो इसका हासिल यह है कि जो पहले दो जुमले हैं, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद और वला आबुदू से लेकर, इसमें माबूदों का इख्तिलाफ बताया गया है। मतलब ये कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, नबी आप कह दें कि इसमें ये बताया गया कि तुम्हारा और माबूद एक नहीं है, एक नहीं हो सकते, कि तुम्हारे तो मिट्टी के बनाए हुए बुत हैं, मेरे तो अल्लाह ताला है, तो किस तरह तुम मेरे हमारे और हमारे मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करूं, तुम मेरे अल्लाह की इबादत कर सकते हो। हाँ, जब तक आप मुसलमान नहीं हो सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते मेरे अल्लाह की इबादत। और अगली आयत में वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदुन मा अअबुद में इबादत का इख्तिलाफ बताया गया है कि तुम्हारी इबादत के तरीके भी अलग हैं, मेरी इबादत का तरीका अलग है। तो इसलिए कभी भी ऐसा मुमकिन ही नहीं एक साल मैं तुम्हारे माबूद बुतों की इबादत करूं, तुम मेरे खुदा की इबादत करो। हाँ, अगर तुम मुसलमान जब तक नहीं होते, अगर मुसलमान हो जाओ फिर तुम इबादत कर सकते। तो ये था नाज़रीन इसका तर्जमा। अगर आप चाहे तो एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ मफ़हूमी तर्जमा, मेरे साथ ये अरबी इबारत भी पढ़ लीजिए। कुल या अय्युहल काफिरून, आप कह दीजिए ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, ना मैं नहीं इबादत करता माँ जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और नहीं मैं इबादत करने वाला जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम इबादत करने वाले जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफी है। मजीद आप वीडियोस के लिए हमारा चैनल यासिर ऑनलाइन कुरान अकेडमी यूट्यूब
उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे हम डेली की वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा कि आज हमारी ये वीडियो आई, तो ज्यादा फायदा है। दूसरा मैंने ये कहना था कि अगर आप हमसे ये कोर्स मुकम्मल कुरान का करना चाहते हैं तो इसमें आपको बहुत फायदा है। एक तो ये है कि हम 8 माह के अंदर पूरा कुरान कोर्स मुकम्मल करवा देंगे, और उसमें एक तो ये है कि 1 माह में हम आपको अरबी के तमाम उसूल बड़े आसान अंदाज से याद करवा देंगे, और वो एक दूसरे माह में हम उसूलों को लगाने के तरीके बताएंगे। ये उसूल कैसे लगता है, इसका तर्जुमा कैसे होता है, उससे आपको अरबी जबान भी आ जाएगी, और दूसरा ये है कि आपको कुरान करीम का तर्जुमा भी बहुत बेहतरीन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बाकी 6 माह में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह तर्जुमा पढ़ाएंगे कि आप मुकम्मल कुरान का तर्जुमा पढ़ लेंगे। उसके बाद आप जहां भी चाहें जिस वक्त, तो आप कुरान मजीद जहां भी चाहें या कुरान मजीद खोलेंगे, जहां भी जाएंगे कुरान मजीद खोलेंगे, आपको कुरान मजीद का तर्जुमा आएगा। आप वहां पे कोर्स कर सकते हैं, उसका हदिया होता है बहुत मामूली सा। तो अगर औरतें हैं, लेडीज हैं, वो हमारे पास फीमेल भी हैं, उनसे भी कोर्स आप कर सकती हैं। तो इस तरह, इसलिए मर्द हजरात के लिए कारी हजरात भी उनसे भी और हमसे भी। तो दूसरा भी, अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियोस में समझ आ रही है तो आप ये वीडियोस देखते रहिए, इसमें आप सवालों, इसमें आपको ज्यादा फायदा है, इसमें भी आपको समझ आ रही है, हम भी आपको देखते रहिए। ठीक है नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।